जूम खुला होगा क्वेश्चन तो जूम पे ही लाऊंगी ना जूम को ओपन करके जाइए जूम को ओपन करके जाइए ताकि मैं देख पाऊँ वो खुला जूम भी Assalamu alaikum everyone. This is Sahar Khan, faculty member at Khadim Ali Shah Bukhari Institute of Technology, Casbit. I welcome you all on the behalf of Casbit in the webinar series of Casbit. Today, the topic of our webinar is contribution of pupil and culture in organization success. We are honored to invite Mr. Haris Hussain, who have an experience of more than a decade in the corporate sector. Currently, he is associated with Puma Energy as a head of HR and admin. Assalamu alaikum, Mr. Haris. How are you? Walaikum salam. I'm good. Thank you so much. Ji, sir. Shall we start our webinar? Yes, please. All right. So first of all, thank you so much, Sahar and Casper team for having me today. It's been an honor. Thank you so very much for joining us. Thank you. And I think the most important part today about the introduction is one that you already shared, that I'm working with Puma Energy as head of HR and administration. But usse bhi zyada jo important cheez hai, that is that I completed my MBA in human resources with Casbit in the year 2016. So it's an honor to be here on this platform to maybe share a little inspiration for people who are sitting on the same benches, on the same seats where I've been. And I think I've been to many webinars and guest speaker sessions to many universities, but this is first with Casbit. So with profound gratitude, I must mention that Casbit has truly shaped my professional journey. The experiences and education I received during my studies have had a lasting impact on my growth and development. And Alhamdulillah, today when I introduce myself, it's an honor that at young age I've been blessed with bigger responsibility, and obviously the credit goes to the people who have been in the journey, and Casbit is one of the major player in my journey. And thank you so very much for joining us. It's a privilege and honor talking to you. और आप हमारे alumni हैं, and that's a really proud moment for us that आप जो है वो इतना अच्छा perform कर रहे हैं in the corporate sector. No, okay. Thank you so much for having me. Thank you. Okay, thank you. Starting with the basics. Today our topic is the contribution of pupil and culture in organization success. So we started from the basics. Can you tell us and our students that the role of HR in the organization? So I'll try to cover it comprehensively so that people who are pursuing HR degree right now may have a clearer career objective, that if they choose HR in future, so what kind of work or contribution they will be doing, right? So how they will be contributing in organizations' overall success. So I'll try to touch upon a little about all the sub functions that HR does. So आप सबने ये routine work में सुना होगा कि HR क्या करता है जी? HR hiring and firing करता है. Okay जी. So this is one of activity that HR is supposed to do. This is not the whole HR, right? So इसी तरह जी किसी को warning letter issue कर दिया या payroll चला दिया, तनख्वाह. So this is not the whole HR, right? So HR का जो vision है, जो HR का overall एक ambit है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है? So अगर आप young age से, this is one of the trick also, ठीक है? ये मैं आपको एक tip भी दे रहा हूँ, एक trick भी दे रहा हूँ कि अगर आप शुरू से clear होंगे अपने HR के career को pursue करते हुए, और अगर इन चीजों के साथ आप connect करते रहेंगे, तो you will have your journey easier and fast forwarded, inshallah, ठीक है? So overall HR क्या करता है जी? So it starts from the whole, it's about the whole employee cycle. It starts from attracting them. सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब्स हैं, जो रोल्स हैं, उनको आप प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करते हैं, and then you come to the conclusion with a methodical assessment कि अच्छा what kind of people with what skill set
what expertise you need people. एंड उस जो रोल है उसका टाइटल क्या होगा, उसका केडर क्या होगा, उसके साथ क्या क्या चीजें अटैच्ड होंगी. सो ये यहाँ से आपका जो है एक इनिशिएशन हो जाता है. देन एचआर स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग रेलेवेंट पीपल इन द मार्केट. ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ एक पोस्ट लगा देना इज वन ऑफ थिंग. अगेन मैं ये कहूंगा कि वो एक एक्टिविटी है जो रिक्रूटमेंट या टैलेंट एक्विजिशन के अंदर एचआर करता है. ठीक है, बट यू मार्केट दैट जॉब, यू अट्रैक्ट रेलेवेंट पूल ऑफ पीपल. एंड देन उसके बाद जो है वो आप पूरा एक स्क्रीनिंग का असेसमेंट का प्रोसीजर चलाते हैं. एंड देन यू and then you shortlist people who are relevant according to your requirements that you had mentioned. अच्छा, कुछ ये चीजें होती है और इसका एक बी पार्ट भी होता है. आप और क्या असेस करते हैं? सिंस एचआर के जो लोग होते हैं वो कल्चर की भी कस्टोडियन होते हैं, कल्चर को भी मेंटेन करने में, नर्चर करने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. सो वो कैंडिडेट्स के अंदर ये भी देख रहे होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट, वैल्यू सिस्टम, और द बिहेवियर्स दैट कैंडिडेट इज ब्रिंगिंग इन. तो बाज़ औक़ात एज अ कैंडिडेट आपको लोगों के लिए भी है कि बाज़ औक़ात आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे, बट मे बी एट द एंड द रिक्रूटमेंट और एचआर टीम वुड रियलाइज कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल्चरली फिट नहीं है, तो मे बी वुड बी not hired at that point in time. तो ये पूरा एक प्रोसीजर रन करता है एचआर एंड देन फाइनली एक कैंडिडेट जो है ऑन बोर्ड होता है. सो यहाँ पर जो एक टिपिकल एचआर का है कि हायरिंग एंड फायरिंग, तो एचआर का काम खत्म हो गया, नहीं जी अब सर दर्द शुरू हुआ है. ठीक है, सो उसके जो जो हमारा एम्प्लॉई होता है, जो कैंडिडेट होता है, वहाँ उसके आने से पहले जो है उसकी ऑनबोर्डिंग की चीजें शुरू हो जाती हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाती है, रेफरेंस चेक शुरू हो जाते हैं. ठीक है, एंड वंस दे कम इन तो आप उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देते. ठीक है, यू रन देयर ओरिएंटेशंस, you make them meet with the stakeholders of the organization, you make sure that they are not sitting idle, you make them gel into the team. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो एचआर की जो टैलेंट एक्विजिशन की या जो रिक्रूटमेंट की टीम होती है वो ये सारा काम कर रही होती है. ठीक है, एंड इसके अलावा ये कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स एक बहुत मेजर पार्ट है एचआर का, जिस सेगमेंट के अंदर एचआर ये देख रहा होता है कि उसके जो तमाम एम्प्लॉइज हैं, जो तमाम स्टाफ है, क्या उनकी जो सैलरीज हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं, क्या वो एट पार है. हर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंट स्ट्रेटजी कॉम्पेंसेशन की फॉलो कर रही होती है, लेकिन अगर हम एक मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो उसमें ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर जो जॉब रोल होता है उसको मार्केट बेंचमार्क किया जाता है. ठीक है, सो वो ये देखा जाता है कि क्या वो जो जॉब रोल हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है उस पर जो शख्स काम कर रहा है, उसका जो सैलरी है, कॉम्पेंसेशन है, बेनिफिट्स है, क्या वो मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे इक्विवेलेंट है या नहीं. ठीक है, सो ये एक कॉम्पेंसेशन की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो एचआर डिवाइस कर रहा होता है. मैंने आपको एक रोल की मिसाल दी. ऑर्गेनाइजेशन में सैकड़ों रोल होते हैं. ठीक है, हजारों एम्प्लॉइज होते हैं, तो यू डू इट वन बाय वन. ठीक है, यू हैव एक भी शख्स को, एक भी स्टाफ को, आप हर स्टाफ आपका एसेट है ना, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते. और अगर कोई हो गया गलती से तो दैट इज तो वो जो एक रिसोर्स है आपका वो एक रिस्क, पोटेंशियल रिस्क के ऊपर चला जाता है. ठीक है, सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजेशन में देखें, जब सब अच्छा अच्छा हो रहा होगा तो जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे वो कहेंगे देखिए मेरा बंदा कितना जबरदस्त काम कर रहा है, और जहाँ पे परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे वो कहेंगे एचआर कुछ करता ही नहीं है. ठीक है, सो एचआर की होल सोली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एचआर एक टूल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का इंट्रोड्यूस करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. एचआर लोगों को एजुकेट करता है, उनकी क्लियर केपीआईज, क्लियर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स साल के शुरू में सेट करवाता है. ठीक है, उस टूल के थ्रू. एंड जब वो सेट हो जाते हैं तो लोगों को उसके ऊपर लोगों को एक क्लैरिटी हो जाती है कि उन्होंने उस साल में क्या करना है. ठीक है, इस दौरान बहुत सारे मैनेजर्स को पसंद नहीं होता, बट फोर्सफुली हमें उनसे टाइम निकलवाना पड़ता है सो दैट दे हैव वन ऑन वन मीटिंग विद ईच स्टाफ, ईच टीम मेंबर, सो दैट दे आर अलाइन्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस. लेकिन सबसे बड़ा जो मसला होता है दुनिया में वो क्या है, तो एक्सपेक्टेशंस का. तो जहाँ तो जो ये एक्सपेक्टेशंस की क्लैरिटी जो है वो एचआर लेकर आ रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिटवीन लाइन मैनेजर एंड एम्प्लॉई, बिटवीन एचओडी एंड देयर टीम. ठीक है,
जब 3-6 महीने गुजरते हैं तो उसी गोल्स के अगेंस्ट हम एक मिड ईयर रिव्यू करवाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें पता चलता है कि क्या लोग ऑन ट्रैक हैं या नहीं है, ठीक है, और अगर किसी को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो ठीक हो जाए, वजह इसके कि साल खत्म हो जाए और हम उसको बोले कि यार तुमने तो कोई काम नहीं किया, सो इट्स अ सरप्राइज फॉर पीपल, राइट। सो इवेंचुअली जब साल खत्म होता है तो फिर एंड ऑफ ईयर या फाइनल ईयर इवैल्यूएशन होती है, वो भी एचआर लीड करता है, और उसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देखते हुए हर शख्स की परफॉर्मेंस रेटिंग बनती है, परफॉर्मेंस रेटिंग के अगेंस्ट वेरी सेंसिटिव थिंग इंक्रीमेंट्स एंड बोनस कंप्यूट होता है, और ये प्रपोजल्स भी एचआर बनाता है और उसको जस्टिफाई पूरी टीम में करता है, राइट। सो ये अगेन एक बहुत बड़ा काम है, आपके लोग एंगेज्ड होंगे, वेल पेड होंगे, वेल रिकॉग्नाइज्ड होंगे, तो वो आपके साथ रहेंगे और ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा लॉयल्टी से काम करेंगे, राइट। इसके अलावा देखिए ना, किसी का भी दिल तो नहीं चाहता ऑफिस आने का, बट एचआर एक is responsible to sort of bring that engagement at work, ठीक है, आप लोगों की इमोशनल कमिटमेंट बांधते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें उनका दिल चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में आने का, जिसमें उनका दिल चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए आउट ऑफ द वे जाने का। आप एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि यस, दीज आर पीपल लाइक माय फैमिली, राइट। तो आपके साथ आकर वक्त गुजारना तो अच्छा लगता है। आप देखिए ना, टॉक्सिक जो वर्क प्लेसेस होती हैं वहां पर हमेशा जो एब्सेंटीज्म होगा वो ज्यादा होगा, राइट। वहां पर लोग एक्स्ट्रा माइल जाना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, और जैसे ही उनको कोई एक बेहतर या इक्विवेलेंट की अपॉर्चुनिटी कहीं मिलेगी दे विल मूव ऑन, ठीक है। सो एम्प्लॉइज को एंगेज करना, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाकर रखना, ये भी एचआर कंट्रीब्यूशन करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस गैप्स होते हैं, या जिस तरह हम बात करते हैं कि वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट राइट नाउ, ठीक है, तो लोगों की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है एचआर कॉन्सेंट्रेट करता है, उनको ऐसे मौके फराहम करता है, और इसके अलावा उनकी स्किल को डेवलप करता रहता है, सो दैट पीपल keep contributing in the organization and they stay relevant to the organization as well. Similarly, सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव चीज होती है वो होती है लोगों का करियर। सो एचआर सक्सेशन प्लानिंग से, करियर प्लानिंग से लोगों के करियर्स, उनकी परफॉर्मेंस और उनके पोटेंशियल्स को एसेस करते हुए अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं किस्म की, ठीक है। एचआर मेक्स श्योर कि हर शख्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका एक करियर प्लान मौजूद हो, ठीक है। हाँ, अगर वो खुद ही की जिंदगी में ग्रो करना चाहता है तो ऐसे भी केसेस होते हैं, बट बाय एंड लार्ज एचआर हैज अ लॉट ऑफ space and a lot of area to contribute, और लोग genuinely grow करना चाहते हैं, उनको opportunities मिलना जरूरी होता है सिर्फ, ठीक है, उनको properly rotate करना, different functions के टेस्ट देना, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से उनको गुजारना, ठीक है, कैडर वाइज उनको ऊपर लेकर जाना, उनकी जॉब्स को इनलार्ज करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो एचआर साथ साथ करता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये सारी चीजें तो कैसी हैं, आई जस्ट नेम्ड अ फ्यू एक्चुअली, अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। द आइडिया इज जस्ट टू लेट पीपल नो कि देखिए, हायरिंग एंड फायरिंग की जब हम बात करते हैं, एचआर क्या करता है जी, हायरिंग एंड फायरिंग करता है, तो नहीं सर, दिस इज ओनली द एक्टिविटी ऑफ वन, ठीक है। तो शायद इसमें पूरा जो एचआर टीम होती है उसका 10% भी वक्त ना लगता हो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब हम टैलेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम एम्प्लॉई एंगेजमेंट की बात करते हैं, तो ये एक ओवरऑल जो है वो अम्ब्रेला एचआर का बनता है, जिसके थ्रू अगर आप इसको रियल स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको आप लीड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसकी ट्रू एसेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो you as HR department are bound to contributing to the organization, right? So इसके अलावा जो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप ये सारी चीजें कर लें और अगर आपको बिजनेस की समझ नहीं है तो यू विल एंड अप नोवेयर, राइट। सो आपको एचआर बिजनेस पार्टनरिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होती है। अगर आप एक इनिशिएटर लेवल के ऊपर हैं तो वहां पर बिजनेस पार्टनरिंग करें, उस लेवल का बिजनेस सीखें, राइट। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं, मिडिल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, तो उस रेलेवेंट लोगों के साथ बैठे बिजनेस को सीखें। सो यू नीड टू नो बिजनेस। अगर आप सिर्फ एचआर में लगे रहेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू कंट्रीब्यूट
द बिजनेस। सो बिजनेस को समझना, बिजनेस की टॉप लाइन बॉटम लाइन का पता होना, बिजनेस की बैलेंस शीट का पता होना, ये एचआर वाले लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो इन प्रीवियस एजेस वी सीन दैट एचआर कर रहा है, उसको पता नहीं है बिजनेस में क्या चल रहा है। ठीक है ना। अब जैसे हम पुमा एनर्जी, वी आर एन ऑयल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है। तो एचआर वाले को पता ही नहीं है कि जो है ना वो कंट्री में तेल है नहीं है। ठीक है ना। तो एचआर अपनी ही धुन में लगा हुआ है। तो एचआर को इतना पता होना चाहिए कि इस वक्त जो है वो सप्लाईज की क्या कंडीशन है, हमारे जो लोग हैं वो किन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। ठीक है। हमारे जो लोग, हमारे सेल्स के जो लोग हैं, जब वो पेट्रोल पंप्स के ऊपर जा रहे हैं, डीलर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो उनको किस किस्म के चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। उनके साथ बैठे मोटरसाइकिल पे और जाकर देखें कि यार एग्जैक्टली आपका जो एक एम्प्लॉई है, जो आपका एक एसेट है, वो किन चैलेंजेस से गुजर रहा है। तो ये सब चीजें करना भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है। सो HR without business acumen would not be able to do or contribute anything in the organization. So this is the overall ambit of the human resources that I have explored so far in my 15 years of career, and I believe इस पूरे को as a package आप implement करते हैं किसी भी organization में, अगर आप एक value उसमें से निकालना चाहते हैं। So I hope this was a comprehensive answer to your question. Definitely, And I yes. hope that everybody is much aware about the overall role of human resources. अच्छा, अगर हम मजीद इस पे बात करें तो सिर्फ जो मैंने कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स की बात की, तो उसका सिर्फ कॉम्प एंड बैंक की अगर हम बात करेंगे तो शायद 3 दिन का एक सोलो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है। ठीक है। अगर सिर्फ हम टैलेंट एक्विजिशन की भी बात करें तो उसमें भी 3 से 4 दिन का जो है वो एक सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है, जिसमें आप टैलेंट एक्विजिशन को डिस्कस करते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि ये सिर्फ और सिर्फ हायरिंग एंड फायरिंग नहीं है। दिस इज अबाउट डूइंग थिंग्स सो मेथोडिकली दैट इट एड्स वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। So, sir, my next question, आपकी बात से ही कि HR is contributing towards definitely people who are working in the organization. When HR is doing so much for people, then how do people contribute in the success of any organization? Yeah, great question, I must say. Um, you see, we have a lot of artificial intelligence in place. We do have machines, systems, softwares, right? But still, why people are there, because people bring their unique skills, their knowledge, their expertise to the organization, right? So that is the overall idea, that these skills can be creativity, can be problem solving, it can be communication skills, it can be leadership skills, right? So they bring a lot of unique skills, expertise that can contribute, or that are essential for running a business, because business requires a brain to think, right? So that brains are our people, and that is why having all the things in the organization, and if people are not there, you can see that there are a lot of case studies that organizations fail or prosper because of people. जी वो organization इतनी तरक्की कर दी क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी। ठीक है ना। वो organization fail कर दी because of टीम बहुत अच्छी थी। So essentially अगर देखा जाए तो what is the X factor which is making organizations grow? So that's people. And that is because they all are unique in terms of their strengths, in terms of their weaknesses, in terms of their potentials. So that is why people are important, and they 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 are significant for any organization's success. And अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, it's completely if they are positively engaged, they will contribute into your organization. If you have that sincerity and loyalty built in them for the organization, that is the only way they will. If someone don't have that, then देखिए, उसका एक हर चीज का एक रूट कॉज होता है। अगर आप 100% ऑफ पीपल की बात करते हैं, तो 100% ऑफ पीपल एंगेज्ड हो, सिंसियर हो, लॉयल हो, तो ये एक बहुत मुश्किल KPI है। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्लोबली
जिसमें ये सब चीजें हैं, बट आई थिंक 100% जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंडेक्स का स्कोर है वो कहीं पर भी नहीं आता। आई थिंक वो 70 to 80 के दरमियान ही लाई करता है, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव एनर्जीज होती है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 50% नेगेटिव एनर्जी है तो देन देयर आर रूट कॉजेस। आपको वो रूट कॉजेस एड्रेस करने होते हैं। वो कल्चर भी हो सकता है, वो परफॉर्मेंस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट हो सकता है जी। मे बी पीपल आर नॉट रिस्पेक्टेड एट अ प्लेस, तो डेफिनेटली if you're not respected at your workplace, you would never want to go an extra mile. आप अपनी तनख्वाह लेंगे घर जाएंगे, right? So you need to reach to that point, or the root cause, to identify that. And only those people who are engaged, who are ready to go extra mile for the organization, they contribute to the organization. मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेंजी का सर्वे पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बड़ी एक कंट्रोवर्शियल सी बात कर दी। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में 20% जो लोग होते हैं वही 80% काम करते हैं। सो आप बाकी सब खुद हिसाब लगा रहे हैं। आई डोंट से कि वो सही होगी या गलत होगी, बट या दैट इज अ थॉट प्रोसेस टू थिंक अबाउट इट। सही। अच्छा, हम जिस तरह आजकल AI है, टेक्नोलॉजी है, which is rapidly taking over. So what will be the future of people in business according to you? How do you see it? Because there are so many individuals who are worried about their future. They are like कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से enhance हो रही है, changes आ रही है, maybe we will lose our job in the long run. Then what, according to you, you read this scenario, and would you like to share your opinion with our students on this? आई थिंक सबसे पहले तो हमें टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजी इस वक्त जितना हम ग्रो कर चुके हैं टेक्नोलॉजी को, या इस वक्त जिस लेवल पर है AI, तो हमें ये समझना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त है या हमारी दुश्मन। ठीक है, सो उसके बाद आपके लिए जो है ना आसान हो जाता है फैसला करना या आगे बढ़ना। सबसे पहले तो आई थिंक हमें ये समझना चाहिए कि AI या जो मशीन है वो क्या कर रही है। मशीन कैन ओनली डू थिंग्स दैट हैव बीन done by people. Machine cannot do things which were never done in life. ठीक है? And people are capable of those innovations and creativity, that they are able to do things which have never been done in life. So आप अगर पूरा देखें तो कंप्यूटर्स इंसानों ने बनाए, पहले नहीं होते थे। ठीक है, सेल फोन स्मार्टफोन पर आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स पर आ जाए, ठीक है, अब इतने बड़े सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आ जाए। सो ये सब चीजें हैं जो इंसानों ने बनाई, अपनी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन से बनाई। ठीक है, सो दिस हैज बीन डन नाउ, सो बी रेडी दैट दिस कैन बी टेकन ओवर बाय टेक्नोलॉजी at any given point of time. So as a human being, to stay relevant in the organizations and in the world also, we need to activate this. We need to actively use our brain in terms of innovation, in terms of creativity, in terms of doing things in newer way, right? This is the only way that you can stay ahead, or you can stay relevant to the organizations, industry and the world also. आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो करना चाहिए वो करना चाहिए कि आपको मशीन के साथ हैंडशेक कर लेना चाहिए। आपको उसको वो किस दोस्त तरह बनाना, किया जाएगा? आपको उसको दोस्त बनाना चाहिए। वो कैसे करेंगे? आपकी जो जो चीजें हो चुकी हैं उसको यूज करना शुरू करें। ठीक है ना, दैट वुड बी माय स्टूपिडिटी अगर मैं आज भी रिकॉर्ड जो है वो कागजों के ऊपर लिखूं, आज भी अगर मैं वो एक्सेल वर्कबुक ना इस्तेमाल करूं, ठीक है, तो दैट वुड बी सो स्टूपिड ऑफ मी, राइट? अगर मैं आज भी चीजें जो है वो कैलकुलेटर पे कर रहा हूं या कर रहा हूं, बिकॉज दिस विल टेक मी लॉन्गर टाइम। However, if I start doing that on Excel, which obviously people have been doing, right? मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक दूसरी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको कंट्रास्ट नजर आ सके। So obviously people have been doing it, but आपको वो एक रेजिस्टेंस का टाइम याद है जब कंप्यूटर्स को लोगों ने रेजिस्ट किया? जब अर्ली 2000s की हम बात करें, 90s की बात करें, जब कंप्यूटर्स नए नए आए, तो बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त कॉर्पोरेट में मेरी पोजीशन पे थे, आपकी पोजीशन के ऊपर थे, एंड दिस सॉर्ट ऑफ रिजेक्टेड इट, और वो नहीं गए इंस्टीट्यूट्स में। उस वक्त आपको याद होगा हर गली मोहल्ले में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स खुल गए थे, राइट? तो वो नहीं गए सीखने के लिए, उन्होंने कहा जी बस ठीक है, जरूरत नहीं है। इवेंचुअली दे वर इररेलेवेंट।
ऑर्गेनाइजेशंस ने लंबी लंबी लिस्टें बनाई और जो लोग भी आउटडेट हो चुके थे दे वर लेड ऑफ। सिमिलरली स्मार्टफोन्स लोगों ने जल्दी अडॉप्ट कर लिए और अब जो एआई की बात चल रही है, ठीक है, आई थिंक इट्स दी, ये सब चीजों को जो है वो वाइप आउट कर देगा। आप जितनी भी ऑडियंस है इस वक्त, अगर आप लोगों ने अभी तक एआई के टूल्स, जैसे मैं एक नाम ले लेता हूँ चैट जीपीटी, अगर आपने यूज नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह रहे हैं। तो आप अभी भी वही एक्सेल वाली मिसाल है कि आप अभी भी कागजों पे या रजिस्टर्स के ऊपर जो है ना अपने खातों का इंदराज कर रहे हैं और आप अपने डेटा मैनेजमेंट के लिए एक्सेल वर्कबुक को इस्तेमाल नहीं कर रहे। व्हाट डज चैट जीपीटी डू? आप उसको क्लू दें किसी भी चीज का, वो आपको पूरा रिटर्न करके दे देगी, पूरा लिख कर दे देगी। अगर आपको एक ईमेल लिखनी है वो आपको दे देगा, आपको ऐसे लिखना है, आपको एक की नोट लिखना है, आपको लेक्चर लिखना है, एवरीथिंग, ठीक है, इन सेकेंड्स इट विल राइट। आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 10 ऑप्शन चाहिए, वो 10 दे देगा। आपको उसमें कुछ चीज पसंद नहीं आ रही, वो हटा देगा, ठीक है। इट विल वर्क एज अ पीए टू यू। आप सोचें, हर शख्स की जेब में एक जो है वो पर्सनल असिस्टेंट आ गया है जो उसके लिए लेटर्स ड्राफ्ट कर सकता है, मेमोस ड्राफ्ट कर सकता है। तो अगर मैं उससे बेनिफिट नहीं करूंगा तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं उससे दोस्ती कर लूँ और मैं उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। जो लेटर लिखने में मुझे 2 घंटे लगते थे, अब मैं 2 मिनट में लिख लूंगा। तो जो बाकी के 2 घंटे मेरे पास बचेंगे, उस 2 घंटे से मैं क्या करूंगा? उस 2 घंटे से मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। उस 2 घंटे से मैं अपनी कोई लर्निंग कर सकता हूँ। उस 2 घंटे से मैं कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूँ। आप समझते हैं? सो इंसान का काम इन क्लरिकल चीजों से निकल कर कुछ बेहतर काम करना है, राइट? बिकॉज वी हैव द बेस्ट ब्रेन्स, ठीक है। तो उनको उस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको दोस्ती करनी चाहिए इन चीजों से जहां आपका काम जो क्लरिकल है, जो वैल्यू ऐड नहीं करता है, ठीक है ना। छोटी सी मिसाल ले लें, जैसे गाड़ी है, गाड़ी ड्राइव करना, गाड़ी का पंक्चर लगवाना, गाड़ी को धोना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन तो नहीं है ना। सो यू हायर समबडी एंड यू आउटसोर्स दिस जॉब कि भाई यार ये कर लिया करें, ठीक है, सो दैट आपकी गाड़ी जो है वो हर वक्त रेडी हो आपके लिए, ठीक है, एट योर डिस्पोजल हो। सिमिलरली ये जो सारे टूल्स हैं दे आर एट योर डिस्पोजल। आपने अपने सारे जो क्लरिकल काम है, जो रिपीटेड वर्क है, वो सारा आपने इस टेक्नोलॉजी के हैंड ओवर कर देना है और अपने आप को इंगेज करना है बेहतर काम करने के अंदर। तो getting my point? तो इस तरह आप जो है वो दोस्ती कर सकते हैं और अपने आप को हर वक्त बिजी रखें, अपस्किलिंग में और कॉन्टिन्यूस लर्निंग में। अगर एक दिन आपको ये लगे कि जी मुझे तो सब आता है, बस उस दिन अपने दिन गिनना शुरू कर दें, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप शायद 1 महीना, 1 साल आप रेलेवेंट रहेंगे, उसके बाद जो है वो बहुत फंक्शन हो जाएगा। मेरी आज इट्स बीन लाइक 15 years आई एम इन द कॉर्पोरेट एंड आई ट्राई टू रीड बुक्स, ठीक है। अगर मैं रीड नहीं कर पाता तो मैं, अगर वक्त की कमी होती है तो मैं ऑडियो बुक्स सुन लेता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, या अगर वो भी नहीं होता तो मैं आपको बताऊं कि इन अ वीक ये जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, जैसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आता है, ठीक है, मैकेंजी के रिसर्चेस आते हैं, लिंक्डइन के ऊपर और बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे जो है वो पॉडकास्ट भी शुरू हो गए हैं। तो मैं वीक में 1 या 2 बार उनको जरूर पढ़ता हूँ, सो दैट आई कैन सी कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है ना। दुनिया में जो एक्स कंपनी है जो कि ग्लोबल जाइंट है, वो क्या कर रही है पीपल एंड कल्चर को लेकर, वो क्या कर रही है बिजनेस को लेकर, वो क्या कर रही है टीम मैनेजमेंट को लेकर। तो सब चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप इस पे ज्यादा लोड नहीं डालना चाहते, ठीक है, तो ज्यादा जो आपका जो चीजें ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी हुई हैं, बस उनको सीखते जाए, उनको सीखते जाए ताकि आप आगे बढ़ते जाए। सो फॉर मी आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज रियली हेल्प in a way that today, so previously जो सीईओज बनते थे या जो लोग जर्नल मैनेजमेंट में आते थे, तो एक टिपिकल एज होती थी 40s में, 50s में, राइट, या 50+ होके लोग जो है वो जर्नल मैनेजमेंट में आ रहे होते थे। टुडे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर शार्पर, यू आर स्मार्टर। आज अगर आप चाहें, आज आप 30 years old बने, आप जीएम बन जाएंगे, कोई मसला नहीं। आप 32 साल की उम्र में बन सकते हैं और शायद आप उससे भी पहले कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स कि आप चीजों को यूज कैसे करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। Thank you. You are absolutely right and wisely said. अच्छा, अब हम चलते हैं towards the second part of our topic, which is culture.
So, firstly, you tell me what is organizational culture and how culture can contribute to organization success. Uh, Organization culture is similar. देखिए, like we have family norms at home. जिस तरह हर घर का एक कल्चर होता है, ठीक है, जिस तरह हमारी मुल्क का एक कल्चर है, ठीक है, जिस तरह हर प्रोविंस का एक कल्चर होता है, इसी तरह इंडस्ट्रीज का कल्चर होता है, उसी तरह हर एक कॉर्पोरेट या एक कंपनी का भी कल्चर होता है. अभी कल्चर है क्या? It's very easy to understand. It's the shared values, the belief system, the norms, attitude, behavior that we bring to the board. That is called the culture. It's like how one person interacts with other person. It's like how a team manager, gels with its team. You know, it's how people. It's the code of living your life in an organization, right? And the simpler way, अगर आप कहीं पर जाएंगे ना, तो बहुत सारी जगहों पर आप जब जाएंगे तो आप बोलेंगे कि ये किस तरह ये इस तरह होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ तो ये ऐसे ही होता है. तो ये जो यहाँ तो ये ऐसे ही होता है ना, that is your culture, right? So it's that simple. The way things are done there. अगर किसी जगह पर चीजें, अगर कहीं पर जो ना बॉस का लोगों के ऊपर चीखना चिल्लाना एक नॉर्म है, तो वहां का कल्चर. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका सबसे निचला डेजिग्नेशन है, ठीक है, मे बी सपोर्ट स्टाफ है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का, और सबसे ऊपर का आपका जो है मे बी सीईओ ले लें, ठीक है, अगर वो दोनों आपस में बेहद रिस्पेक्ट से बात करते हैं, नीचे वाले की तो मजबूरी है, उसने तो करना ही है, बट अगर सबसे टॉप पर जो बैठा है शख्स वो भी सबसे इतनी इज्जत से बात कर रहा है, तो दिस इज द कल्चर. You're absolutely right. So आप ये सोचें. So coming to the second part of your question, that how culture can contribute in the organization success. तो आप सोचें कि ऐसे कल्चर जहाँ पर वैल्यू सिस्टम मौजूद है. वैल्यू सिस्टम की अगर आप एक क्यू यहाँ से ले लें कि आप किसी भी कॉर्पोरेट की वेबसाइट खोलेंगे तो उनकी कॉर्पोरेट वैल्यूज जरूर लिखी हुई होंगी, ठीक है. उसमें से चंद मैं आपको गेस करके बता देता हूँ, ठीक है. एक इंटेग्रिटी होगी, ठीक है, लाजमी होगी. अगर 4 वैल्यूज होती हैं, 4-5 होती हैं, 3 से 5 के दरमियान होती हैं, ठीक है, तो एक इंटेग्रिटी तो जरूर होगी, ठीक है. किसी ना किसी में टीम वर्क भी लिखा होगा, किसी ना किसी में लीडरशिप लिखा होगा, किसी ना किसी में कोलैबोरेशन लिखा होगा, ठीक है. सो अगर ये कोलैबोरेशन सिर्फ और सिर्फ लिखने की हद तक है, और एक्चुअली जब अगर आप वर्क प्लेस पे देखें तो लोग आपस में कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, तो इट मींस वो अपने अपने डोमेन में बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे को हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो हर बंदे की जिंदगी मुश्किल हो जाती है, राइट. तो आपका वैल्यू सिस्टम, और अगर ऐसा कल्चर हो तो फिर हम उसको किस तरह कोप अप करें when people will not share their experiences and they are not helping out other individuals, then how can we change that culture in the organization? देखिए कल्चर एक दिन में नहीं बनता, ठीक है. कल्चर एक महीने में भी नहीं बनता. इट्स अ प्रोसेस, ठीक है. जिस तरह कौमें बनने में वक्त लगता है ना, इसी तरह लोगों को बदलने में वक्त लगता है. तो अगर आप आज से शुरू करते हैं, एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट लेकर आते हैं, लोगों को उसकी अहमियत का एहसास दिलाते हैं. देखिए इंसान है ना, इंसान की एक टेंडेंसी होती है, उसका एक लर्निंग स्टाइल है. वो सबसे पहले रेजिस्ट करता है, सबसे पहले किसी भी चीज के लिए वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है, चाहे वो उसके भले के लिए ही क्यों ना हो, ठीक है. आज एआई की बात करें, वो उसको पहले रेजिस्ट करेगा, ठीक है. कोई भी नई टेक्नोलॉजी ले आए, कोई भी नया चीज ले आए, वो पहले उसको रेजिस्ट करेगा. तो हमेशा वो उसको रेजिस्ट करेंगे. आपने उस चीज को इतना इफेक्टिवली लोगों को समझाना है, बताना है, टीच करना है, अपना मैसेज कहते रहना है, कहते रहना है, कहते रहना है. एंड इवेंचुअली जब लोग उन सिचुएशन से गुजरते हैं, दे चेंज, राइट. सो इट्स नॉट वन डे कि आज मैं कहूँ कि आज सब कोलैबोरेशन करेंगे और हमने ट्रेनिंग भी करा दी और हमने सब ने मिल के जो ना डांस वांस भी कर लिया या कोई एक एक्टिविटी कर ली, चलो जी हो गया कोलैबोरेशन. इट्स अ लॉन्गर रन थिंग. आप इसको साथ साथ हर अपनी मैसेज के अंदर बताते हैं. आप इसको
जब भी कोई प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आप क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाते हैं ताकि लोग आपस में करें। आप अवे डेज करते हैं, आप क्रॉस फंक्शनली लोगों को जेल करवाते हैं, आप बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आप अपना मैसेज ऑफ कोलैबोरेशन उसमें बताते हैं। मैं आपको सिर्फ कोलैबोरेशन एक एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि उसमें और भी वैल्यूज हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप हो सकती है, ठीक है। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप हर लेवल के ऊपर हर बंदे की होती है। इट्स नॉट कि सिर्फ सीईओ ने लीडरशिप दिखानी है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग बाय द एग्जांपल, और बाकी सारे टिपिकल टॉक्सिक मैनेजर्स बने हुए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये सारी जो चीजें होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में आपको उनके ब्लड में डालनी होती है। आप जब फिर हायरिंग कर रहे होते हैं, आप इतने चूजी क्यों हो रहे होते हैं? आप ये सब चीजें देख रहे होते हैं बेसिकली कि क्या ये जो शख्स अ, हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं, क्या ये हमारे वैल्यू सिस्टम, क्या ये टीम प्लेयर है, क्या ये एक्टिवली कोलैबोरेट करेगा, क्या इसमें लीडरशिप विद इंटेग्रिटी मौजूद है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप असेस कर रहे होते हैं ना, दैट इज व्हाई यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। वरना काम तो कोई भी कर लेता है। एक शख्स है जो एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है 15-20 साल से, ठीक है, तो वहां पर भी तो काम वो कर ही रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी आके कर ही रहा है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि आप इंटरव्यू प्रोसेस से ही चेंज कर लेते हैं और अपना मैसेज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बार बार कहते रहते हैं। और सिर्फ कहते नहीं है, आप करके दिखाते हैं। एज अ सीईओ आप वो चीज यू रियली मीन इट, ठीक है। एज अ जर्नल मैनेजमेंट यू मीन इट एंड यू रियली एग्जिबिट इट इन योर डेली लाइफ। व्हेन यू आर इन मिडिल मैनेजमेंट यू रियली exhibit it. सिमिलरली कि जो सबसे नीचे या सबसे स्टार्टिंग लेवल के ऊपर जो डेजिग्नेशन का बंदा होता है उसका इंटेग्रिटी लेवल एंड सीईओ का इंटेग्रिटी लेवल शुड बी सेम। This is the power, or this is the maturity of your value system in the organization, right? So ऐसी organization, अच्छा बहुत सारी organizations ऐसी भी होती हैं जो कि जिनमें culture नहीं होता, half cooked होता है, या जिनका value system भी थोड़ा बहुत बस ठीक ही होता है, and they grow. आपको ऐसे cases नजर आएंगे that they will grow. But what is the difference between a properly structured and values oriented organization? उनकी जो strength होती है वही उनकी उनकी sales नहीं होती, उनका value system होता है, and that helps them staying at the top for longer run. ऊपर पहुंचना मुश्किल नहीं है, ऊपर जाकर stay करना, sustain करना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। ऊपर जाना is fine. So ये culture जो है, I think this is how culture contributes. और सबसे देखें अच्छी चीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने शुरू में बात की कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक नॉन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट या जो एक सबसे पिवटल एलिमेंट होगा वो उसके लोग होंगे हमेशा, ठीक है। इस अगर आज आपको बाहर, बल्कि इस तरह की एग्जांपल ले आओ, एनी वन ऑफ यू, कोई भी आप में से कहीं जाता है इंटरव्यू सेशन देने, ठीक है। हम कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं एबीसी कॉर्पोरेशन के अंदर, ठीक है। जब आप वहां पहुंचे तो आप रिसेप्शन पे आपको आपने रिसेप्शन पे बताया कि जी मैं इंटरव्यू देने हूं। मैंने कहा अच्छा जी हमें तो नहीं पता, आप बैठे हम देखते हैं। उन्होंने आपको बिठा दिया, ना उन्होंने आपको पानी पिलाया, ना आपसे उन्होंने कोई चाय शाय पूछी, ठीक है। उन्होंने एचआर में कॉल की तो एचआर वाले हाँ 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 बुलाया था, सॉरी सॉरी बताया नहीं। उनको बिठाए, मैं मीटिंग से फ्री हो गया आ रहा हूँ, ठीक है। तो एचआर या जो लाइन मैनेजर है जिसने इंटरव्यू करना है वो मीटिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। और आप आधे घंटे तक वो बैठे हैं और दीवारें देख रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की। सो दिस इज व्हाट्स दैट यू आर गोइंग थ्रू एन एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई एचआर वाला या कोई भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है एंड दे टेक यू टू द मीटिंग रूम, और वो आपसे एग्रेसिवली बात करते हैं या आपसे जो है ना वो अनप्रोफेशनल सवालात करते हैं, आपसे इंटरव्यू इस तरह करते हैं जैसे आपके ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है, इससे पहले कहाँ थे, अच्छा ये क्यों छोड़ दी, ठीक है। सो आपकी टोन बड़ा मैटर करती है ना। सो आपका जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा जब आप वापस जाएंगे, अगर तो आप बेरोजगार बैठे हैं तो शायद आप ज्वाइन कर लेंगे, बट जब आप वापस जाएंगे और अगर आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर वेल रिस्पेक्टेड हैं, ठीक है, और वेरी वेल वैल्यूड हैं, तो शायद चांसेस हैं कि आप इस कंपनी को, एक एबीसी कॉर्पोरेशन को परस्यू नहीं करेंगे एनी फर्दर, राइट। सो
ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करती हैं, और अगर आप आपकी अवेलेबिलिटी पूछती हैं, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, और वो आपके साथ एकोमोडेट करते हैं, ठीक है, यू वुड वांट टू वर्क फॉर सच कंपनीज। हाउएवर ऐसी कोई कंपनी जो आपको कॉल करती है, कहती है कि जी ये टाइम है, आ सकते हैं तो आ जाएं, वरना जो है ना लाइन लगी हुई है लोगों की, यू वुड नॉट वांट टू वर्क फॉर सच कंपनीज, राइट। सो ये क्या है, ये कल्चर और बिलीफ सिस्टम है ना, नॉर्म्स है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां पर हम एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं, इसी तरह हम बाहर भी होंगे, तो मैं कैंडिडेट्स को भी उसी तरह से ट्रीट करूंगा, मैं उनको अकोमोडेट करूंगा, ठीक है। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही मुझे अकोमोडेट नहीं करती तो मैं शायद वही चीज सारी चीजें आगे कर रहा होता, तो इंसान वही आगे स्प्रेड आउट कर रहा होता है जो उसके साथ हो रहा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि जब ये लोग आपके बाहर जाते हैं, ये आपका इमेज फॉर्म करते हैं, जब ये लोग बाहर किसी से बात करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांड फॉर्म करते हैं, राइट। और जो सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग होता है वो उसके लोग होते हैं। अगर कंपनी सोशल मीडिया के ऊपर तो धड़ाधड़ पोस्ट लगा रही है, ठीक है ना, फुल फॉर्चून 500 वाला उसने जो है ना इमेज सोशल मीडिया पे बना लिया है, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टेप इनटू द ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता चलता है कि जी यहाँ पे तो मामला बहुत ही खराब है, ठीक है। तो वो दो चीजें बड़ी फर्क हो जाती है। सो या आई होप दैट वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि कल्चर ये होता है, और कल्चर इतना ज्यादा जरूरी है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्रेस। यानी अगर मैं नटशेल में बात करूं तो ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑफ कोर्स तो इट कैन बी वन ऑफ द वैल्यू, या ठीक है, so how does a culture of transparency and open communication contribute to build trust within an organization according to you? देखिए, चीजें छुपाने से क्या होता है, चीजें झूठ बोलने से सोचें क्या होता है, उससे आप अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं, ठीक है, उससे आप अपनी जो एक इमेज होता है उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो जब आप यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्लेम करती हैं ना कि वी आर अ फैमिली, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से दैट वी आर अ फैमिली, राइट। सो ऐसी कौन सी फैमिली यार जिसमें बातें छुपाई जा रही हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी फैमिली है जहाँ पर एक दूसरे से या एक दूसरे फैमिली मेंबर से झूठ बोला जा रहा है किसी चीज के ऊपर, या इंफॉर्मेशन जो है वो होल्ड की जा रही है, शेयर नहीं की जा रही, ठीक है। एक ऐसी चीज है जो मेरे पास मौजूद है, और अगर मैं अपने कुलीग से वो शेयर कर लेता हूँ तो वो अपना प्रोजेक्ट बहुत आसानी से एहसन तरीके से कंप्लीट कर सकता है, और मैं फिर भी नहीं शेयर कर रहा, तो मैं किस किस्म का फैमिली मेंबर हूँ, आप मुझे बताएं, ठीक है। सो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इज ऑफ द utmost इम्पोर्टेंस। जिस तरह वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे थे, तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक नॉर्म हो सकता है, ठीक है ना, एक 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 स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑपरेटिंग हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे चीजें छुपाई जाती हैं वहाँ छुपाई जाएंगी, ऐसी चीजें जहाँ पर एक ओपन कम्युनिकेशन होती है, स्टाफ से हर चीज शेयर की जाती है, ये जो टाउन हॉल्स हैं ये क्या है, ये बेसिकली इट्स अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, चाहे वो आपका पर्सनल हो चाहे वो आपका प्रोफेशनल हो, तो आप यू हैव टू इंश्योर कि जो कम्युनिकेशन है दैट इज देयर, ठीक है, एंड इफ इट इज इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन। एंड आप जितना लोगों के साथ ओपन होंगे उतना लोग आपके साथ ओपन होंगे। सो अंडरस्टैंड, कहना लिखना कि जो ना पीपल आर माय मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज डिफरेंट, बट इफ यू रियली मीन दैट यू विल बी शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद देम क्वाइट ऑफन। हाँ, वो जो इंफॉर्मेशन है वो फर्क हो सकती है लेवल टू लेवल, बिकॉज देखिए हर हर केडर की एक हर हर लेवल ऑफ जो एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एक एपेटाइट होती है ना, उसकी एक समझ का लेवल होता है, ठीक है। तो मे बी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, और अगर आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को शेयर कर दें तो ऑर्गेनाइजेशन को उससे नुकसान हो सकता है, राइट। बट हाउएवर जिस लेवल पे जितनी कम्युनिकेशन शेयर होनी चाहिए वो होनी चाहिए। सो जो ट्रांसपेरेंट और ओपन कम्युनिकेशन होती है वो फायदा ही पहुंचाती है ऑर्गेनाइजेशन को, नुकसान कोई नहीं करती है। Very well said. Asha, one more question I want to ask you. As you all know, global landscape is evolving. How can organization ensure that their culture remain adaptable and responsive to change?
I think it's about it's organization's responsibility, and obviously there is certain part on people also. Uh, Organizations should foster adaptability and responsiveness to the cultures, and it's possible through open communication. It's possible through encouraging innovation, and it's possible through providing continuous learning opportunities, and it's about people taking ownership of their work, of their decisions, and of their organizations also, right? So that is how organizations can stay relevant and responsive to the cultural changes. लेकिन दुनिया ने तो हमारे लिए नहीं रुकना, हमारे लिए ठीक है ना, पूरी दुनिया ने ये तो नहीं कहना कि यार रुक जाए, भी पाकिस्तान वाले थोड़े से पीछे चल रहे हैं, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, वो लोग भी हमारे साथ आ जाए, तो उन्होंने तो नहीं रुकना. They will keep moving. So that's us who have to speed up our endeavors, our efforts to sort of, अगर हम उनसे आगे नहीं निकल सकते, हमें हमें विजन तो करना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, आपका जितना बड़ा विजन होता है अल्लाह आपको उसी हिसाब से जो है वो नवाजता है, तो हम इन्विजन तो कर सकते हैं कि हमें उनसे आगे निकलना है, बट चलें अगर वो नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उनके बराबर आने का एफर्ट तो हम कर सकते हैं, राइट? तो अगर ग्लोबली जो ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ठीक, जैसे आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं. इस वक्त पूरी दुनिया आफ्टर कोविड, ठीक है, हम हमारे यहाँ पे अगर आप अभी जाके गूगल पे लिखें कि जो है ना वर्क फ्रॉम होम या यू नो changing paradigms of human resources after COVID या during COVID, new norms, आप लिखें, आपको बेतहाशा सेशंस मिलेंगे जो हमने पाकिस्तान में किए हैं. मैंने खुद अटेंड भी किए हैं, उनको अपने इनसाइट्स भी दिए हैं बहुत सारे सेशंस के अंदर. But what has happened? It's like we are still talking about कि यार वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए. हम आज भी 6 days वर्किंग के ऊपर काम कर रहे हैं, majority of the organizations. Why? Because maybe that trust level, अभी तक वो ट्रस्ट नहीं बन पाया शायद ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है. और आने वाले वक्त में देखिएगा, देखिए कुछ कंट्रीज हैं जो कि 4 days वर्किंग वीक के ऊपर चली गई हैं, ठीक है. कुछ कंट्रीज हैं जो 6 hours a day वर्किंग के ऊपर चली गई हैं, ठीक है. उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, वो सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने आम कर दिया अपनी, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड दे हैव सीन दैट पीपल आर रियली प्रोडक्टिव. मतलब अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान में 9 घंटे की शिफ्ट बनाता हूँ या 9 to 6 का अगर मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसमें से एक्चुअली काम 4 घंटे ही हो रहा है, बाकी 4 घंटे तो सिर्फ इसी खर्च हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, राइट? सो इस तरह की उन्होंने रिसर्चेस की, इस तरह की उन्होंने सर्वेज की, एंड देन दे केम अप विद दीस थिंग्स. तो हम उनकी रिसर्चेस और सर्वेज से क्यों नहीं सीखते, ठीक है. हम अभी तक इन चीजों के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एसेंशियल है, वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. सो आई थिंक इट्स अ टू वे स्ट्रीट. एम्प्लॉइज को अपने आप को उतना ट्रस्टेबल शो करना चाहिए. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर जो एम्प्लॉइज हैं उनका लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लेवल ऑफ ओनरशिप इज वेरी हाई, एंड दे आर हैप्पीली डूइंग वर्क फ्रॉम होम्स, ठीक है ना. इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर लोगों को जहां डंडी मारने का मौका मिलता है वो मार लेते हैं. सो दोस ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट डू नॉट ट्रस्ट देम, ठीक है. तो शायद वो अभी तक इसी उसमें चल रहे हैं. तो दुनिया बहुत आगे जाती जा रही है, हम शायद उन बेसिक चीजों के ऊपर अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं. तो हमारे जो लोग हैं उनको ये चीज समझना चाहिए कि जो अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप का जो एक मामला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंस का है. वंस दैट इज डन तो बहुत सारी चीजें आसान हो सकती हैं, ठीक है. वर्क फ्रॉम होम कोविड के अंदर लोगों ने किया. कितने परसेंट लोग ये कह सकते हैं कि जी मैंने 6 महीने, माई सेल्फ आई वर्क लाइक 6 months फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड. मैं 6 महीने दफ्तर नहीं आया, बट कितने परसेंट लोग जो है ना ये दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि जी मैंने पूरी ईमानदारी से 9 बजे से लेकर 6 बजे तक अवेलेबल रहा और मैंने काम किया, ठीक है. देयर वर ओकेजन्स कि हम जब भी कॉल करते थे अपने किसी टीम मेंबर को, वो दही लेने निकला हुआ होता था, ठीक है. जब हम कोई मीटिंग इनवाइट करते थे वो अवेलेबल नहीं होता था, वो दवाई लेने निकला हुआ होता था उसी बात की. तो बिल्कुल करें वो सारी चीजें, बट
एक एक जो ऑनेस्टी होती है टुवर्ड्स योर रोल, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक हमने खुद भी कुछ ना कुछ कमी छोड़ी है इन चीजों के अंदर, दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पा रहे। सो यहाँ पर जो लोगों की तरफ से वो है पार्ट है उनका, वो ये है कि उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी को 110% शो करना है, राइट। इंटेग्रिटी या तो होती है या नहीं होती है, राइट। तो हमें होने वाले में होना है, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा ये हो गया जी, थोड़ा सा ये हो गया, तो थोड़े वाले एलिमेंट में नहीं, ठीक है। जब ये सब चीजें होगी तो ऑर्गेनाइजेशंस ट्रस्ट करेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस आपको ट्रायल एंड टेस्ट का मौका भी देंगी, आपको इनोवेशन। वंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई हैव ट्रस्ट कि यार ये बंदा जो है वो बहुत ज्यादा सिंसियर है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो मैं उसको मौका दूंगा टेस्ट एंड ट्रायल करने का, ठीक है। मैं उसको एक्सपेरिमेंट करने का मौका दूंगा, ठीक है। मैं उसको नई नई चीजें करने का मौका दूंगा। सो वंस that person comes with something brilliant, कोई एक एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का न्यू स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग बन जाता है। दैट इज हाउ people and organization both can keep moving in terms of organization culture, in terms of organizational success, and in terms of overall, standard of doing work. Very well said. थैंक यू। अब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े से हमारे स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस ले लूँ। इफ समवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, और फिर मैं जो हूँ आपके क्वेश्चन को ले आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। आशीष जी, विनोद, आप वांट टू आस्क द क्वेश्चन? I'm Vinola and I'm a student of HRM. My question is, could you provide examples of how motivated employees enhance productivity and overall performance? So you are not audible. Okay, I was put on mute by the host. Okay. All right. So, did you hear something or you missed No. everything? Now Okay. we are hearing it. Now you are audible. All right. So, देखिए इसका जो जवाब है ना, वो आपको ऑब्जर्व करने से अपनी क्लास में मिल जाएगा। हर क्लास के अंदर 40-45 लोगों का बैच होता है, ठीक है। एंड आप देखेंगे कि उनमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े एक्टिव होते हैं क्लास के अंदर, जो कि बड़ी पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं या मोटिवेटेड होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिवली मोटिवेटेड होते हैं, वो भी चीज होती है, ठीक है। तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जो बहुत पॉजिटिवली मोटिवेटेड होते हैं, तो उनके जो स्कोर्स होते हैं, उनका जो क्लास पार्टिसिपेशन होता है, उनके जो क्विज के रिजल्ट्स आते हैं, वो सब में फर्क होता है। डू यू रिलेट टू इट और नॉट? I mute her. Can you relate with this? Yes. So बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसी तरह होता है कि देयर आर पीपल हु आर मोटिवेटेड, ठीक है। वो बहुत एक्टिवली हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो बहुत एक्टिवली चीजों के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात देखें ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज गलत हो रही होती, चाहे वो उस डिपार्टमेंट का, उस डिवीजन का हिस्सा हो या ना हो, वो फिर भी उसको स्पीक अप जरूर करते हैं, स्टेक होल्डर्स तक जरूर पहुंचाते हैं, बिकॉज दे आर पॉजिटिवली मोटिवेटेड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोडक्टिविटी। सो जो लोग, दिस इज द फर्स्ट थिंग, विल पावर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके अंदर एक चीज आ गई कि यार ये मैंने करना है, दैट इज द मोटिवेशन, राइट। सो अल्टीमेटली यू विल बी मूव्ड टुवर्ड्स इट। लेकिन एक शख्स जो मोटिवेटेड ही नहीं है, ना ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स के लिए, ना ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए, ना ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए, तो उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना ना। वो तो आएगा, काम करेगा अपना, आए वो घर चला जाएगा। वो देखेगा कुछ गलत हो रहा है, छोड़ना यार, ठीक है ना, ऐसे ही छोड़ना बस। तो इस तरह की चीजें होती है। तो मोटिवेटेड पीपल will always be productive in terms they will focus on their work, they will focus on the output,
ऑफ देयर वर्क, ठीक है। वो जो भी काम रोजाना आकर करते हैं उनको ये पता होगा, वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि यार इसका एंड रिजल्ट क्या है, ठीक है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ कि हर शख्स हर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसकी मोटिवेशन उसी हिसाब से प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट कर सकती है। कैसे? अब हम सबको ये लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट तो सीईओ होता है या फिर जनरल मैनेजर होता है किसी डिपार्टमेंट का, ठीक है। वो क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर सपोज टू मेक डिसीजंस। ऐसा ही है। वंस यू अंडरस्टैंड कि वो डिसीजंस किन चीजों की बेसिस पे करते हैं, वो डिसीजंस करते हैं डेटा की बेसिस के ऊपर, ठीक है। वो डेटा जो कि डेली बेसिस के ऊपर डेटा एंटर हो रहा होता है, ठीक है, या मैनेज हो रहा होता है। सो मे बी एक जूनियर ऑफिसर लेवल का शख्स होगा ना, जो कि डेली की एंट्रीज कर रहा होगा सिस्टम के अंदर, एसएपी के अंदर, एक्सेल के अंदर, ठीक है। और उसकी बेसिस के ऊपर एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सपोर्ट बन रहा होगा, ठीक है, सिस्टम बन रहा होगा। तो वो जो रिपोर्ट्स आगे जर्नल मैनेजर को शेयर होती हैं, उसी की बेसिस के ऊपर एक मीनिंगफुल एनालिसिस बनती है। उन्हीं एनालिसिस की बेसिस के ऊपर जर्नल मैनेजर या सीईओ जो होता है वो डिसीजन लेता है। सो आप सोचिए अगर वो डेटा ही गलत है तो डिसीजन सही हो सकता है? ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ एवरीबडी। हर शख्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा है उसको ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो छोटे लेवल के ऊपर हूँ या मैं तो एंट्री लेवल पोजीशन के ऊपर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो इतनी ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, वो सब किसी ना किसी इंसान ने ही बनाई है ना। इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी अगर एक जैसे हम किसी भी छोटी सी आजकल होर्डिंग्स आप देखें कोकोमो के लगे हुए, तो ये तो लाजमी नहीं है ना कि कोकोमो जो डिजाइन है या जो बनाया है वो वहाँ के सीईओ ने ही बनाया हो, या जो प्रिंस बिस्किट है उसकी जो स्कीम है वो वहाँ के जनरल मैनेजर ने ही बनाया हो, पूरी टीम ने बनाया हो सकता है कि ये वहाँ के किसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आइडिया हो। तो दिस इज द पावर, ठीक है, कि बहुत सारे एड्स आते हैं, ठीक है। मार्केटिंग का काम तो ऐसा होता है जो फौरन नजर आ जाता है। तो बहुत सारी एड्स आते हैं, आपको कुछ ऐसे होते हैं जो कि वायरल हो जाते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, एंड आपको वो याद रह जाते हैं, आप लॉन्गर रन में उनको याद रखते हैं। अगर आपको पता नहीं याद है या नहीं है, तो एक शान फूड्स ने एक टाइम आया था, उन्होंने बहुत ही इमोशनली कनेक्टिंग एड्स बनाना शुरू किए थे, जहां पर एक एड वो भी आया था कि जिसमें दो भाई होते हैं, कहते हैं कि भी कोई ईद हुई, राइट? अगर आप लोगों को अभी तक याद है तो वो किसने, वहाँ के जनरल मैनेजर, लाजमी तो नहीं कि उसने बनाया हो, हाँ उसने हो सकता है फाइन ट्यून जरूर किया हो, लेकिन एक पूरी टीम का आइडिया होगा ना। हो सकता है किसी असिस्टेंट मैनेजर का ही आइडिया हो इस थीम को बनाने का। तो पूरी पूरी टीम्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रीब्यूट करती हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर केडर एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर डेजिग्नेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन की फिक्र होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन को एज वेल एज अपने आप को जिंदगी में कहीं बड़े मुकाम पर देखना चाहते हैं, वो इस तरह एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। I hope this was the answer to your question. Thank you. I'll go towards the next student. और किसी ने कोई question पूछना है, you can raise your hand up. Ma'am, I want to ask a question from sir. Yes, sure. Sir, my question is that how does employer development impact an organization's ability to adapt to changes in business environment? Can you please come again? Hassan, can you repeat your question? Yeah, ma'am, sure. Ma'am, my question is that how does employer development impact an organization's ability to adapt to changes in the business environment? All right. How does employer development? Yeah, employee development. The development of Yeah, the ma'am. employees. Employer development. All right, all right. अच्छा, इसको हमने थोड़ा बहुत टच किया था अपने उन क्वेश्चंस के दौरान भी, जो भी हम कर रहे थे। तो मैं इसको थोड़ा सा और इसमें ब्रीफ कर देता हूँ कि देखें, आप सीखते किस तरह हैं, आपके पास कौन से मीडियम्स हैं जिनसे आप सीखते हैं। आपके पास जो भी 5 सेंसेस हैं गॉड गिफ्टेड, ठीक है,
उसमें से जो सीखने के लिए सेंसेस यूज होती हैं वो ये है कि या तो आप देख के सीख सकते हैं कोई चीज, ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक, या फिर आप सुन के सीख सकते हैं। ये दो चीजें होती हैं, या तो आप कुछ चीज पढ़ेंगे आंखों से, राइट, ऑब्जर्व करेंगे, या फिर आप कानों से सुनेंगे तो आपके ब्रेन में वो चीजें जाएंगी। इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो यही दो चीजें हैं जिसपे ऑर्गेनाइजेशंस को, और मैं इस पे हाईलाइट करूंगा कि देखिए सिर्फ और सिर्फ अपने अपने करियर की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशंस पे भी ना छोड़ के बैठ जाए प्लीज। इस वक्त जो आपके पास एरा है वहां पर लर्निंग इज सो मच अवेलेबल, आपके ऊपर है, आप मोबाइल खोलते हैं, आपके ऊपर है, आप रील्स देख रहे हैं या आपको एक प्रोडक्टिव पॉडकास्ट देख रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर है कि क्या आप कोई एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं या आप फेसबुक के ऊपर बस एक डेड स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर है कि आप यूट्यूब पे जाके कोई जो है ना वो वल्गर कंटेंट देखते हैं या फिर कोई एक प्रोडक्टिव पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो लर्निंग हर जगह अवेलेबल। तो ऑर्गेनाइजेशंस को तो करना ही है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, वो अपना जितना रोल करते हैं दैट इज देयर, बट एम्प्लॉइज को भी अपनी करियर की, अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी है वो खुद लेनी चाहिए, राइट। एंड दिस इज द ओनली वे यू कैन बी स्मार्टर देन योर सेल्फ द फॉलोइंग डे। वो है ना कहावत कि अगर मैं अपने कल से बेहतर हूं तो आई एम ग्रोइंग, बट अगर जो कुछ मुझे पिछले हफ्ते आता था, पिछले महीने आता था, वही कुछ मुझे आज भी आता है, तो आई एम लैगिंग बिहाइंड, राइट। तो कुछ भी नया सीखें, चाहे वो लीडरशिप के बारे में हो, चाहे वो मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में हो, चाहे वो एचआर के बारे में, चाहे वो सप्लाई चेन के बारे में हो, आप सीखें। द आइडिया इज टू लर्न एनीथिंग एंड आपके पास बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। सिमिलरली आप रिलीजन के बारे में सीखें, ठीक है, आप रिलीजन को समझें, स्टडी करें, ठीक है, वहां पर भी आपके लिए बहुत सारी लीडरशिप की चीजें हैं, तो वो सीखने को मिलेगा। सो द आइडिया इज कि अपना जो ब्रेन है उसको इंगेज रखें, ठीक है ना, वरना ये जो ब्रेन होता है ना, या तो आप इसको सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, वरना ये खुद उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको पकड़ के रखें और इसको आप जो है ना वो सीधी डायरेक्शन के अंदर लेकर जाएं, वरना वो खुद ऑटो पायलट के ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप अपने आप को बेहतर बनाते रहें अपने कल से, और जो भी लोग अपने आप के साथ सिंसियर होते हैं, जो बेहतर होते हैं, वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। आप मुझे बताएं कि एक शख्स है जिसने एक टॉपिक के ऊपर 4 किताबें पढ़ी हुई हैं और एक शख्स है जिसने अपने एमबीए के बाद कभी किताब ही नहीं खोली, दोनों एक मैनेजमेंट मीटिंग में बैठे हुए, आप मुझे बताएं कि हु वुड हैव मोर नॉलेज? जो एक्टिवली रीडिंग कर रहा है, जो एक्टिवली लर्निंग कर रहा है, वही होगा ना, वही होगा। सो इवेंचुअली इट्स कि दोनों में से जो भी शख्स ज्यादा नॉलेजेबल होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना क्रिटिकल होगा। तो अपने आप के ऊपर इतना काम करते रहें कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप 20% के अंदर रहें, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल रहें, फिर आपके करियर, आपकी कॉम्पेंसेशन की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की आप छोड़ दें। अगर आप उन 20% में नहीं आ रहे तो फिर आप यही सोचते रहेंगे कि यार मेरी तनख्वाह कम है, यार मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, यार मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिलती, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत फिर मसले आपके साथ लगे ही रहेंगे, ठीक है। सो हमने इस चीज को काफी डिटेल में पहले डिस्कस कर लिया था, सो आई एम जस्ट एड्रेसिंग योर पॉइंट, योर क्वेश्चन। Thank you. Next question. Junaid, you can ask. Yeah, hi sir. My name is Junaid, and I have a question. Can you describe आपकी the आवाज काफी connection कम आ रही है between जुनैद। Junaid, you are clear, not sir? audible. Yeah, just a second. Now it's clear. Now it's clear. Yeah. Yeah. So, sir, my question is, can you describe the connection between the employee well-being, job satisfaction, and the organization culture? Junaid, still we could not able to hear you. Can you repeat your question? Or maybe you can type in the chat box if that's the case. Yes. Sure. I've just seen the messages Yeah, people have dropped in the chat box. Junaid Thank you has so much. written the question, can you describe me the connection between employee well-being, job satisfaction, and organization culture? I think
in an organization, everything is interconnected. Employee well-being ही अगर compromised हो, तो I think you would not want to go to that workplace. Daily आपका दिल ही नहीं करेगा जाने का, ठीक है ना? And अगर ऐसे इदारे जहाँ पर employee well-being priority होती है, ठीक है, आपको एक फीलर आता है ना कि यार नहीं, I'm taken care by people. My mental health, my physical health is really being taken care. ठीक है. छोटी सी मिसाल, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर डेली या जो एक लेट सेटिंग है वो एक नॉर्म है, ठीक है, नॉर्म से मुराद ये कि आप सुबह 9 बजे आते हैं और शाम 9-10 बजे तक आप ऑफिस में ही होते हैं. सो आई थिंक द मैसेज इज क्लियर ना कि ऑर्गेनाइजेशन आपको फैमिली लाइफ एंजॉय करने का टाइम नहीं दे रही, ठीक है. अगर ऑर्गेनाइजेशन दे रही है और आप नहीं ले रहे तो फिर देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है ना. तो हर चीज ऑर्गेनाइजेशन पे हमने डालकर नहीं निकलनी, ठीक है. सो अगर ऑर्गेनाइजेशन का ये नॉर्म है कि सब लोग 9 बजे आते हैं और 9 बजे तक बैठे होते हैं, तो दैट इज वेरी क्लियर कि वो आपको आपकी फिजिकल हेल्थ, जिम जाने का टाइम नहीं दे, ठीक. वो आपको आपकी इमोशनल हेल्थ जो होती है, आप अपनी फैमिली के साथ जाकर जुड़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठते हैं, तो आपको वो भी टाइम नहीं मिल रहा. तो द मैसेज इज क्लियर. However, when we see कि नहीं जी ऑर्गेनाइजेशन में 9 बजे सुबह आने का एक norm है and people start leaving or people exactly leave at 6 o'clock, then I think that organization is really sincere about your well-being, right? इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉम्पेंसेशन की स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, वो मार्केट अलाइंड है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज रियली सिंसियर अबाउट योर वेल-बीइंग, राइट? इट मीन्स दैट इफ आई एम वेल पेड, अगर तो एक जॉब करने के मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज इनजस्टिस समहाउ. बट अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे फेयर पे दे रही है, राइट, फेयर बेनिफिट्स दे रही है, फेयर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो दे रही है, फेयर रिकॉग्निशन दे रही है, तो देन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन इज रियली कंसिडरेट अबाउट माय वेल-बीइंग, राइट? सो जब वेल-बीइंग होगी, ये सारी चीजें मौजूद होंगी, तो ऑटोमेटिकली आई विल हैव जॉब सेटिस्फेक्शन इन माय रोल, इन माय कंपनी, राइट? एज आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिस होती है? वहां से मिस होती है हमेशा कि जहां पर आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है. जहां पर कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, तो वो प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है एक ऐसे लाडले को जो कि टीम में मशहूर होता है, ठीक है. सो अगर वो नहीं है, सबको फेयर चांस मिल रहा है, ठीक, तो देन आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी. इवेंचुअली ये जो सब की प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, आपकी जॉब डिससेटिस्फेक्शन, मेरी जॉब डिससेटिस्फेक्शन, मिस्टर एक्स की, मिस्टर वाई की, इन सब की जो जॉब्स डिससेटिस्फेक्शन मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉक्सिक कल्चर बन जाती है. However, अगर ये सारी चीजें ठीक हैं, हम सब लोग नॉर्म्स है, वेल-बीइंग है, हम लोगों की वेल-बीइंग को प्रायोरिटाइज किया हुआ है, उसको ड्यू इंपॉर्टेंस दी हुई है, ठीक है. सो अल्टीमेटली जॉब सेटिस्फेक्शन आएगी और हम सबका ये जो अमल है मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाएगा. सो टू मी, यस, it's everything is interconnected. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स भी इंटरकनेक्टेड हैं. I think business processes be interconnected. Everything is interconnected in the organization. Okay, I'm going to take the last question of our students. See the question, Pushna, you can raise your hand. Ji Hassan Shakir, you can ask your question. Hello, sir. My question is, can you provide example of Pakistani companies that have successfully integrated their culture with their businesses strategies to achieve success? Who have successfully integrated their culture? Ji. Okay. What's their success? I would preferably sort of not name any organization, ठीक है. However, देखिए जो ग्लोबल जाइंट्स हैं, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, वो किसी ना किसी वजह से हैं, ठीक है ना. सो ऐसी तमाम कंपनीज जो कि ग्लोबली एग्जिस्ट करती हैं और पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती हैं, उनके कल्चर्स जो हैं वो उनके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंस का पॉइंट है, ठीक है. उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसके ऊपर वो डेली बेसिस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है. Similarly, if I
Okay, so this is one thing about your question. Second, I'll tell you that, you know, here at, since I'm representing Puma Energy, so I take a lot of pride in, you know, sharing that people who are staying here, who leave this company, they always mention that, you know, I will always miss the culture of your organization, you know. And the people who have been, you know, here are being, I take a lot of pride in that, you know, that, you know, people are being respected, people are given rotations, okay? People are given new opportunities to excel. Okay? So that is the case here at Puma, and we see that, you know, this really brings a lot of positive energy on everyday basis. And yeah, so I hope that's the answer to your question. Thank you so very much for joining us for this webinar and sharing your thoughts and knowledge with our students. हम इंशाल्लाह in future भी आपको जो है अपने sessions में बुलाएंगे. And at the end, if you want to like to add something, you can. Sure. Thank you. First of all, thank you so much for having me. जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि it was of, you know, absolute pleasure that that, you know, I got the chance to speak to my university people, and because the emotional commitment and the emotional connection is there, because, you know, I've been through that life, what, you know, these people are living right now, and that's absolute pleasure towards me. I think the last message towards all of you, all the students, would be कि अगर आप मुझसे एक चीज पूछें कि जो जिंदगी में सक्सीड होने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, तो वो मैं आपसे कहूंगा कि दैट इज योर वैल्यू सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम हो या ना हो, आपका होना चाहिए. ठीक है, वो कहाँ से आता है? वो आपके घर से आता है, वो आपके पेरेंट्स आपके अंदर इनकलकेट करते हैं शुरू से. ठीक है, वो आपकी फैमिली के नॉर्म्स होते हैं. अगर आपकी फैमिली आपको झूठ बोलने पे टेंशन नहीं है, कोई ओके अलाउड है, तो शायद वो फिर आगे तक चलेगा. राइट. सो वो चीजें अपने घर में भी बनाए और बाहर अपने दोस्तों में भी बनाए. ठीक है, इंटेग्रिटी को एक अटमोस्ट इम्पोर्टेंस दे, यू नो, ऑनेस्टी को एक इम्पोर्टेंस दे. ठीक है, तो अपना वैल्यू सिस्टम क्रिएट करें. ठीक है, इसी तरह जिन गैदरिंग्स का आप पार्ट है, वहां पर एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करें. सिमिलरली जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएं, आप अपना वैल्यू सिस्टम अपने साथ कैरी करें. ठीक है, जो अच्छी चीज होती है ना, देखें, रिलीजन्स आपको क्या सिखाते हैं? जितने भी रिलीजन्स हैं, उनमें से कोई भी रिलीजन ये तो नहीं कहता कि जी लोगों को मार दें, नहीं कहता. हर रिलीजन पीस सिखाता है आपको. ठीक है, हर रिलीजन, कोई भी रिलीजन आपको ये तो नहीं कहता कि बड़ों से नफरत करें या बड़ों की डिसग्रेस करें, नहीं कहता. हर रिलीजन आपको ये कहता है कि जो ना वो बड़ों की इज्जत करें, वैल्यू सिस्टम करें. तो अपने अपने वैल्यू सिस्टम्स के ऊपर काम करें, ये आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज है. If I today look back, Alhamdulillah, God has blessed me with a lot of success at a young age. And when I look back, I see that, you know, I had that value system from my family, my father, my mother, that was inculcated in me. You know, it was inculcated so strongly that मैं शायद सोते हुए भी उससे deviate नहीं कर सकता. Right? Even if I'm not in my senses, I can never deviate from that. ठीक है, तो वो इतना strongly inculcated है. So that is number one thing that is required to be successful. और अगर आप कुछ गलत सलत या, you know, without having a value system, अगर आप कुछ कर भी गए, तो again उसको sustain करना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो शायद आप sustain नहीं कर पाएंगे for longer time period, right? So to reach to a level and to sustain there for you know, consistently, your value system is important, right? If you ask me, second thing that is important for the success, that would be clarity. Everybody needs to have clarity in their lives. It's about आप क्या करना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उससे आपका एंड रिजल्ट क्या हासिल होगा. जब वो एंड रिजल्ट हासिल होगा तो क्या होगा. ठीक है, आपके लिए कामयाबी क्या है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए पीस होता है, कुछ लोगों के लिए खुश रहना होता है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस होता है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हायर डेजिग्नेशंस होते हैं. तो जस्ट बी क्लियर, पैसे ज्यादा कमाने हैं, ठीक है ना, इज्जत ज्यादा कमानी है,
ठीक है, वो पहले पुराने के लोग होते थे ना, वो कहते थे जी पैसे तो नहीं कमाए अपनी जिंदगी में लेकिन इज्जत बड़ी कमाई है, ठीक है, तो दैट शोज के जी पैसे और इज्जत इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, तो इज्जत कमानी है, ठीक है ना, डेजिग्नेशन को स्पीड से लेकर जाना है, क्या करना है, ठीक है, तो जस्ट बी क्लियर अबाउट योर एम्बिशंस। हर बंदा बड़ा आदमी बनना चाहता है, हर शख्स, बट ये बहुत वेग स्टेटमेंट है, यू नीड टू बी क्लियर कि क्या करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए, कैसे करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। सो द क्लैरिटी एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह जब आप कल को आगे बढ़ेंगे, जब आप देखेंगे कि आपको प्रोजेक्ट्स असाइन हो रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स में भी वो लोग लीड करेंगे जिनको क्लैरिटी होगी उस प्रोजेक्ट के आउटकम से, उस प्रोजेक्ट के कंट्रीब्यूटर्स के साथ, उस प्रोजेक्ट के असाइनमेंट्स या जो उसके बुलेट पॉइंट्स हैं, उसके स्टेप्स हैं, जिन लोगों को उसकी क्लैरिटी होगी वो उस प्रोजेक्ट में बेहतर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इन एवरी फेज ऑफ लाइफ द क्लैरिटी पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दीज टू थिंग्स, first have your value system, second have clarity about your life, about your religion, about your career aspirations, about your family life, about your friends life, everything, and be clear what is happiness to you, be clear what is success to you, right? So हमारा problem ये हमें पता ही नहीं होता, और हम बस we're just running in the rat race. So that is the final note from my side. Again, thank you so much for having me, and Thank you a lot so of very much for joining us. thank you. Hafiz. And one more thing, I think I see a lot of comments in the chat box. Everybody has been appreciating this session, so thank you so much. I'm completely touched and moved from your kind words, and I wish that I get another chance to talk to you, inshallah. Inshallah. Thank you. Thank you, Hafiz. Chief. Allah Hafiz.